الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم الامین۔ ناظرین کرام، الحمدللہ اپنی اگلی کلاس کے ساتھ ترجمۃ القرآن کی اگلی کلاس کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ ہم نے سورۃ البقرہ شروع کی ہوئی ہے، اس کی ہم نے 4 آیات پہلی پڑھی ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ ہم آگے شروع کرتے ہیں بلا تاخیر۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اب ہم نے اپنی پچھلی کلاس میں اسماء اشارہ قریب اور بعید پڑھے تھے۔ آپ کی یاد دہانی کے لیے میں ان کو ریوائز کر دوں۔ ہاذا، ہاذان، ہاؤلائی، ہاذی، ہاتان، ہاؤلائی، یہ اسماء اشارہ قریب تھے، اور جو دور کے لیے اس میں اشارہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ذالکا، زانکا، اولائکا، تلکا، تانکا، اولائکا۔ سو اولائکا از اس میں اشارہ بعید کے لیے جمع کا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے وہ، یعنی کہ وہ سب، جمع کے لیے اولائکا۔ اعلیٰ ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے، اعلیٰ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اوپر یا پر۔ ہدن، یہ بھی ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے، مطلب ہدایت۔ علی ہدن، ہدایت پر۔ من ربہم، من بھی ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے، سے، کی طرف سے یا سے، جیسے ہم نے پڑھا تھا من المسجدی، مسجد سے، من البیتی، گھر سے، وغیرہ۔ من ربہم، آگے دیکھیں ربہم، یہ 2 لفظ ہیں، ربی پلس ہم، دونوں لفظوں کو ملائیں تو ربہم بن جاتا ہے۔ رب کا مطلب تو پروردگار ہو گیا، رب، اور ہم مطلب ان کے، یہ پروناؤن ہے، دیم یا دیر، ان کے پروردگار۔ اولئک علی ھدی من ربہم، وہ یا وہی، وہ سب، یا ہم وہی کہہ سکتے ہیں ترجمہ، اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ جن کا پیچھے تذکرہ پڑا ہے، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو قرآن پاک پر ایمان رکھتے ہیں، پچھلی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر اور یوم آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہی سب اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، آگے چلتے ہیں۔ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اب اگین وا مطلب اور، اولئکا وہی، ہم، اب دیکھیں ہم کا مطلب بھی وہی ہوتا ہے، ہم نے پڑھی ہے پروناؤن، ہوا، ہما، ہم، وہ سب یعنی وہی۔ تو جب 2 وہ اکٹھے ہو جائیں نا، یہ بھی وہ اور یہ بھی وہ، تو ان دونوں کو جب 2 وہ کو اکٹھا کریں تو بن جاتا ہے وہی، اور وہی المفلحون۔ اب یہ دیکھیں ال پلس مفلح پلس واو نون، ہم نے پڑھا ہوا ہے واو نون، یا نون، واو الف، الف تا، یہ جمع کی پلورل ہے، جمع کی سائن ہے، پلورل کی سائن ہے۔ الف دا کے لیے ہے، تو مفلح فلاح سے ہے، اور فلاح آپ نے سنا ہوا ہے کامیابی کو کہتے ہیں، کامیابی۔ اچھا، کامیابی کے لیے 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں عربی میں، ایک فوز ہوتا ہے، فوزن، اور ایک ہوتا ہے فلاح۔ ایک آخرت کی کامیابی ہوتی ہے، ایک دنیا کی کامیابی۔ تو اینی وے، ہم المفلحون، اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اب واو نون بتا رہا ہے کہ جمع کی بات ہو رہی ہے، وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی کامیاب ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، وہی لوگ ان کے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ اولئک ھم المفلحون، اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اب یہ بات ہوگی مومنین کی، متقین کی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا،
इन लजीना कफरू सवाउन अलैहिम आ अंजरतहुम आ अंजरताहुम इन्नल लज़ीना काफरू सवाउन अलैहिम अंजरतहुम अम लम तुनजिरहुम ला युमिनून। वो आगे पढ़ते हैं। अब देखें एक एक लफ्ज को देखते हैं। इन्ना, इसको मतलब होता है बेशक। इन्ना बहुत दफा आएगा। इन्ना और अन्ना दोनों का माना बेशक होता है। ये बहुत दफा आएगा, आप इसको नोट कर लें। इन्ना मतलब बेशक। अब लफ्ज आपस में मिल रहे हैं तो तर्जुमा भी मिलेगा। इन्नल लज़ीना, बेशक वो जो, अल्लज़ीना हमने पढ़ा हुआ है, वो जो या वो जिन्होंने, कफरू कुफर से है, कफरू कुफर से है। अब इसमें देखें एक रूल है जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, जो अप्लाई हो रहा है। वो क्या है? वाव अलिफ आ रहा है एंड पे, जमा की साइन है। इसका मतलब है जमा का माना आना चाहिए। कफरू जिन्होंने, ये देखें वाव नून है तो मतलब जमा है ये, जिन्होंने कुफर किया। कुफर का लफ्जी मतलब होता है इनकार करना, डिनाई करना। इन्नल लज़ीना काफरू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया। सवाउन, मुसावी आपने लफ्ज सुना होगा, मुसावी एक साथ पे। सवाउन मतलब बराबर, बराबर है, इट इज इक्वल। अलैहिम, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, अला प्लस हुम मतलब अपॉन देम, उन पर। आ अनजरताहुम, यहाँ पे एक बड़ी आपको पते की खूबसूरत चीज बताने लगा हूं। आ लफ्ज है पहले, आ हमजा जबर आ का मतलब होता है, ये किसी भी सेंटेंस को, किसी भी जुमले को सवालिया बनाना हो ना, इंटेरोगेटिव बनाना हो तो आ लगा देते हैं उसके साथ। मसलन आपने कहना है क्या आप मुसलमान हैं, तो कहेंगे आ अंता मुस्लिम। आ कह के अंता कह देंगे। दो लफ्ज हैं, एक आ और एक हल। इन दोनों का किसके लिए होता है? क्वेश्चन के लिए। मसलन आप कहेंगे आ अंता मुस्लिम, क्या तुम मुसलमान हो? अब जवाब में आप या तो ला कहेंगे या नाम कहेंगे, हाँ ये नहीं। तो आ मतलब क्या? तो एनीवे, अनजरताहुम, अनजरताहुम ये क्या लफ्ज है? अनजरता प्लस हुम, अनजरता और हुम का हमने पढ़ा हुआ है उनको। अनजर नजीर से, डराना। और मैंने बताया था ता पे जबर हो तो माना तुम होता है, जो हमने अनामता में पढ़ा था, तुम नहीं नाम। तो अनजरता मतलब तुम डराओ, आप डराएं। हुम मतलब उनको। तो अनजरता हुम, आप उनको डराएं। आगे है अम लम तुनजिरहुम, अम लम तुनजिरहुम ला युमिनून। अब ये देखें, अम इंग्लिश में अम जो होता है ना, इंग्लिश में जैसे ओ आर और होता है, या जैसे हम कहते हैं या, मैं या तुम, अना अम अंता। अम मतलब और या। लम हमने हरूफ नफी पढ़े थे, मा ला लम लन गैरु लैसा लैसत। सो लम इज वन ऑफ हरूफ नफी। लम मतलब नहीं, लम मतलब नहीं। तुनजिर हुम, ये वही इंजार से है। तुनजिर मैंने बताया था जो लफ्ज ता से शुरू हो तो मतलब तुम होता है, और जो या से शुरू हो तो मतलब वो होता है। तो ये तुन से शुरू हो रहा है तो मतलब तुम डराओ, हुम मतलब उनको, तुम डराओ उनको।
अब लम तुनजिरहुम का क्या माना हो जाएगा, तुम नहीं डराओ उनको। ला हुरूफ नफी फिर आ गया, मतलब नहीं। युमिनूना या से शुरू हो रहा है, मतलब गायब है, वो ईमान लाएंगे। और ला युमिनून का क्या माना हो जाएगा, वो ईमान नहीं लाएंगे। सो अम या लम तुनजिर, आप ना डराएं, हुम उनको, अनज़रतहुम आप उनको डराएं, अम या लम तुनजिरहुम उनको ना डराएं, ला युमिनून वो ईमान नहीं लाएंगे। इन्नल लज़ीना कफरू बेशक वो लोग जो जिन्होंने कुफर किया, सवाउन अलैहिम बराबर है उन पर, अनज़रतहुम आप उनको डराएं, अम लम तुनजिरहुम या उनको ना डराएं, ला युमिनून वो ईमान नहीं लाएंगे। तो ऐ महबूब, जो कुफर वाले होते हैं ना, इनकार वाले होते हैं, आप उनको डराएं या ना डराएं बराबर है उन पर, वो ईमान नहीं लाएंगे। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं। अब आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि क्यों, ऐसा क्यों है, ईमान क्यों नहीं लाएंगे। खतमल्लाहु खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम, खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम। खतमा आपने लफ्ज़ सुना हुआ है, खत्म नबूवत हम बोलते हैं, खत्म नबूवत बड़ी मशहूर टर्म है। ख़त्म कहते हैं मोहर को, स्टैम्प, स्टैम्प लगाना, मोहर लगाना। और मोहर अक्सर चीज़ के एंड पे होती है। ख़त्म नबूवत जो एक नबियों की चेन चलती आ रही थी ना, उस पर आखिरी मोहर किसने लगाई, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसलिए उनको ख़ातमुन नबिय्यीन कहा जाता है। सो एनीवे, ख़ातमा मतलब मोहर लगा दी, ख़त्मा मतलब मोहर लगा दी अल्लाह ने। खतमल्लाहु अल्लाह ने मोहर लगा दी, अला मतलब पर, कुलूब ये क्या लफ्ज है, कुलूब प्लस हुम, कुलूब जमा है कल्ब की, और कल्ब कहते हैं दिल को। यहाँ पर मैं अर्ज कर दूं कि हम इंशाल्लाह तजवीद भी पढ़ेंगे, और मैं तजवीद आपको 3 से 4 लेक्चर्स में कंप्लीट पढ़ा दूंगा इंशाल्लाह, इतना आसान है तजवीद। तो यहाँ तजवीद का रूल क्या है, कौफ जो है ना, इसको अगर आप लाइट पढ़े, काफ कल्ब, कल्ब कुत्ते को कहते हैं अरबी में, और कल्ब दिल को कहते हैं, इतना फ़र्क है। प्रोनाउंसिएशन से मीनिंग चेंज होता है अरबिक में, ज़बर ज़ेर पेश से मीनिंग टोटल चेंज हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, किसी लफ्ज़ को खींचना और ना खींचा उससे मीनिंग चेंज हो जाता है। एनीवे ये तजवीद का टॉपिक है, इंशाल्लाह उसमें हम पढ़ेंगे। एनीवे कल्ब की जमा है कुलूब, और कल्ब कहते हैं दिल को, और कुलूब हिम मतलब उनके, यानी उनके दिलों पर। अला गुजर गया ना पहले, उसका मतलब पर है, अला कुलूबिहिम उनके दिलों पर, व अला और अला मतलब पर, समइहिम यगेन लफ्ज समई प्लस हिम, सम समात से, हिम मतलब उनकी, यानी उनकी समात पर, सुनने लिसनिंग पावर पर। ख़तमल्लाहु अला कुलूबिहिम अल्लाह ने मोहर लगा दी उनके दिलों पर, व अला समइहिम और उनकी समातों पर। ये काफरों की बात हो रही है कि इन्नल लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया बराबर है उन पर, आप उनको डराएं या ना डराएं वही मान नहीं लाएंगे। क्यों, ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समिहिम व अला अब्सारिहिम, अल्लाह ने मोहर लगा दी उनकी हर धर्मी की वजह से। और ए महबूब, जो कि ये आपसे ग्रज रखते हैं, आपसे जेलसी रखते हैं, इसलिए मैंने इनके दिलों पर मोहर लगा दी है, कि इनके दिलों पर और इनकी समातों पर मोहर लगा दी। अब उनके दिल तो हैं लेकिन वो सही बात को फील नहीं करते, उनकी समात तो है लेकिन वो हक बात को सुनते नहीं है।
सो ख़तम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावतुन व अला अबसारिहिम ग़िशावतुन व अला अबसारिहिम ग़िशावतुन वलहुम अज़ाबुन अज़ीम वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। वअला मतलब और पर अबसार बसर की जमा है, बसरुन, और हिम मतलब उनकी। बसर कहते हैं आँख को, आँख, बसारत, देखने की पावर। बसर उन आँख को कहते हैं, अल-आइन भी आँख को कहते हैं, लेकिन बसर देखने के मानों में, बसारत यानी देखने की पावर। वाला अबसारिहिम, और उनकी बसारत पर यानी देखने की पावर पर, गिशावतुन, गिशावतुन पर्दे को कहते हैं, पर्दा है। अब गिशावतुन गशी कहते हैं ना, गशी तारी होगी फलां बनने पर, गशी बेहोशी को कहते हैं। जब इंसान की अकल के और दुनिया के दरमियान पर्दा आ जाए उसको गशी भी कहते हैं। गशी क्या होता है? बेहोशी। तो वाला अबसारिहिम गिशावत, और उनकी बसारत पर पर्दा है। वालहुम, वाह मतलब और, अब लहुम ये दो लफ्ज हैं, लाम प्लस हुम। मैंने आपको बताया था लाम का मतलब होता है के लिए, हुम मतलब उनके। सो उनके लिए, लहुम मतलब उनके लिए। अगर आपने कहना हो तुम्हारे लिए तो लका कहेंगे, लका। मेरे लिए ली, लहुम उनके लिए। वाला अबसारिहिम गिशावतुन, और उनकी बसारत पर पर्दा है। वलहुम, और उनके लिए अजाबुन अजीमुन, अजाब मतलब अजाब और अजीम मतलब बड़ा, हम वैसे भी लफ्ज़ यूज़ करते हैं अजीम। वाला अबसारिहिम गिशावतुन, और उनकी बसारतों पर पर्दा है। वलहुम अजाबुन अजीम, और उनके लिए बड़ा अजाब है। किन के लिए? काफिरों के लिए जिक्र है। ये जो पीछे आयत गुजरी, अल्लाह ताला का ये एक उसलूब है कि अल्लाह ताला अगर कहीं पे अजाब का जिक्र करते हैं, अपनी पकड़ का जिक्र करते हैं, तो उसके बाद वाली आयतों में अल्लाह ताला अपनी नेमतों का, जन्नत का जिक्र कर देते हैं मोमिनीन के लिए। जहाँ पे अगर पहले मोमिनीन का जिक्र हो रहा हो तो बाद में फिर अल्लाह ताला काफिरों का जिक्र करके उनके लिए अजाब की वईद भी सुना देते हैं। तो एनीवे, यह आयत चल रही थी काफिरों के बारे में कि बेशक ए महबूब, काफिर जो है इनके लिए बराबर है, आप इनको डराएं ना डराएं, ये ईमान नहीं लाएंगे, क्योंकि इनकी आंखों पर, इनके बसारत पर अल्लाह ताला ने इनके दिलों पर मोहर लगा दी है, और इनके बसारत पर पर्दा है। ये देखते तो हैं हक चीज़ को, लेकिन उसको फील नहीं करते। देखे ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत उमर फ़ारूक, उस्मान गनी, मौला अली, सब ने देखा, वो सहाबा बन गए। देखा तो अबू जहल ने भी था, अबू लहब ने भी था, लेकिन वो क्यों नहीं बने? क्योंकि वो पहचान ना सके, उनको ईमान नसीब ना हुआ। तो हर कोई सरकार को देखने से साबी नहीं बनता, ईमान की हालत में देखने से साबी बनता है। तो आँख तो होती है, 5 सेंसेस जो हमारी हैं, जो हमारे हिस्से हैं 5, वो तो होती हैं, लेकिन वो वर्क कब करती हैं, वो रियलाइज़ कब करती हैं, वो काम कब करती हैं? जब उनसे हम हक चीज़ को देखते हैं। तो ये बड़ी नेमत होती है अल्लाह ताला की। तो आज के लिए इतना काफ़ी। इंशाल्लाह अगले आयत में हम नेक्स्ट आयत में नेक्स्ट ट्रांसलेशन के साथ मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।